حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار, اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے, سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا, پھر 4,000 دینار تھے, 4,000. جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں, جوان بھی تھی, چھوٹی بھی تھی, ان کے بھی بچے تھے. دین کو ضرورت ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں, پیسے تھے, درہم تھے, دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے, ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا, ایک گڑا چھوٹا سا تھا, گڑا ٹویا, اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دے, اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے, اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا, انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گئے. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں, 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے, پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا, جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی, غربت کے دن تھے, کمزوریاں تھی, مال اس دن, کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے, سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے, سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو, یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے, جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا, اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا, برتن بھی رکھے, اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو, ادھر دیکھو میری طرف, ایک جوڑا پہن لو, اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے, کیا بنے گا, فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا, ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ, کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے, سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدا وے میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا, ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے, ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلک, گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں, جب کو لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو, یہ کیا ہے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے. بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے, لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلک. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں, میں بڑا مالدار. اب کہتا لہم اللہ و رسول, گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں, میں مصطفیٰ والا ہوں, میں کوئی غریب نہیں, میں نبی والا ہوں, میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے, اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا, اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے, سارے فرشتوں کو پہنا دیا, سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لے بات, جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا, پھر درود و سلام پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے, میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا. یا رسول اللہ وہ کیا, فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض. یہاں اقبال بولے, کہنے لگے خودی کو کر بلند, خودی کو کر, یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے, کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی, میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے, ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی, سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے, قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے, فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں, احادیث موجود ہیں, حضور سارا مال دینا ہے, فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے, سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں, فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو, چوتھا حصہ دے. تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا. ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو, تب کو
कबूल करूंगा। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तू सारे ले आ, तेरा सारा ही कबूल, तू सारे ले आ तेरा। और एक लफ्ज़ हदीस में ऐसा है, आप यकीन करें, गुलाम हूँ किसी फकीर का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ ना तो आपे से बात बाहर निकल जाती। हुजूर का एक फरमान है, जब उस पर तवज्जो आती है ना तो मतलब ये कि लफ्ज़ जो है ना वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और दिल कहता है कि नहीं ये जो है ना ये मेरा आज है, ये असल है, ये हकीकत है। वो तिरमिज़ी के लफ्ज़ है, पर आप यकीन करें कि लगता यह है कि दुनिया मोहब्बत सारी सिमट गई इसमें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा ही नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने। और फिर अगले लफ्ज़ ऐसे हैं कि रूह वज्द करती है। मेरे करीम महबूब फरमाने लगे जिसका भी माल आया मैंने बेगाना समझ के खर्च किया है, और जब अबू बकर का आया है तो मैंने अपना समझ के खर्च किया है। मैंने अपना समझ के, मुझे पता है ये शिकवा नहीं करेगा, ये शिकायत, यानी इसको सारा भी तरोड़ मरोड़ लूंगा तो इसके लफ्जों पर कभी हरफ। और यार कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 देते हैं तो 20 जगह बताते हैं, जो खाना खिलाते हैं तो जिक्र करते हैं, पर मैं इसका माल मेरा माल है, मेरा, इसको सारा तोड़ के खा भी जाएंगे तो ये शिकवा नहीं करेगा, ये सारा मेरा अपना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन बोल पड़े, अर्ज की हुजूर जब मैं आपका हूँ तो माल भी तो आपका ही है। या रसूल अल्लाह जब मैंने अपना नहीं बचा के रखा तो फिर माल। हजरत मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है, अच्छा कई दफा ऐसे होता है मैं बात कोई और बयान करना चाहता हूँ तो शुरू मामला किसी और तरफ निकल जाता है। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी ने लिखा है कि वो जो सांप था ना गारे सौर में, वो 600 साल से बैठा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है? फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा? बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। इंतजार करना और ये सारे काम करना, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। मैं अपने एक संगी को लेके पहुंच गया, छोटा मोटा मौलवी मैं भी हूँ। सुबह मैं 7 बजे के 8 बजे हम वहाँ पहुँच गए। हजरत आराम फरमा रहे थे, नमाजें उन्होंने अंदर अदा फरमाई सारी। 600 साल वो साम बैठा रहा, 600 साल और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ये वाली, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आप ठहरे, मैं जरा भी आया सफाई कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहाँ एड़ी रखता। अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, ये सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो, गर्मी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारहीन ने लिखा, रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर, फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफा में लुआबे दहन लगा। मुल्ला मोइनुल वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन्होंने कदम हटाया ना तो फिर वो सांप बाहर निकला, अपना सर निकाला और खड़ा होके हुजूर का दीदार करने लगा। तो नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, अब तू जा, मुझे और अबू बकर को रहने दे। वो निकल गया। ये कैफियत है, ये मोहब्बत है, ये बारफ्तगी है, ये सोच है, ये दर्द है। यारो ये मैं कहा करता हूँ कि ये चीज जीने का भी मजा देती है, मरने का भी मजा, सुरूर आता है इंसान उसमें। जब ये कैफियत शामिल होती है ना, रंग और होता है, दर्द और होता है, जायका और होता है, कैफियत और होता है, फिर कोई शौक नहीं रहता आला कपड़ों का, बड़ी गाड़ी का, लंबे चौड़े मामलात का। फिर तो इंसान ढूंढता फिरता है, कोई मुझे महबूब की बात सुनाए, कोई उसकी शान में कोई शेर सुनाए, कोई उसका जिक्र सुनाए, कोई मिल जाए ना कभी कि मेरे तार छेड़ दे, कोई मिले, कोई बात करे, कोई जिक्र करे। फिर इंसान ढूंढता फिरता है उन लफ्जों को, उन लोगों को जो पकड़ के दरवाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाएं। बड़ा प्यार किया मेरे करीम महबूब। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमाते, मीटिंग बैठी थी बदर वाले दिन, हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दलेर लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहाँ ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को।
कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे हों। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपे। कहते हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहाँ ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं। मैंने तो अर्ज कर भी दिया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह यहाँ ड्यूटी मैं ही करूँगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा। फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंचे। किसी की जुर्रत ही नहीं, मैं अकेला काफी हूँ मुस्तफा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज, ये शान, ये लताफत। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी पर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दी, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया। हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तू गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था। गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल। खबरदार उसके आगे नहीं चलना। अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती। ये हुजूर का फरमान है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती है बेतरतीब मुलाकात। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे। हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी घर चले गए, असर पढ़ी तो घर चले गए, मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते 3 दफा हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए, अबू बकर ने कहते 3 दफा पूछा तो मैं फिर पहुंच ही गया। मैंने कहा अबू बकर 3 दफा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक एक बार दौड़े, हुजूर हुक्म। फरमाया कहाँ थे सुबह से? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब फरमाने लगे तुम्हें थोड़ी कहा था, तुम्हें थोड़ी कहा था। तू ना जाया कर यार, तू रहा कर, तू रहता है तो दिल जमा रहता है, तू यहाँ मौजूद होता है तो दिल। अब यकीन करें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में दिल करता है इन्हें बंदा खरीद के पास रख, इनको खरीद ले, ये यहीं रहे, ये जाए ना। इसलिए कि उनका लबो लहजा और होता है, उनका तर्ज हयात और होता है, तर्ज गुलामी और होता है, तर्ज फर्मा बरदारी और होता है, अंदाज और होता है। फरमाया तू ना जाया कर, यही रहा कर। और मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर तू सिर्फ मेरा गार में ही साथी नहीं, कयामत में जब मैं हौज़े कौसर तकसीम करूंगा तब भी तू मेरे पास ही बैठा हो। कयामत के दिन हौज़े कौसर की तकसीम में भी तू मेरे साथ ही होगा, मेरे नबी करीम अलैहि। और एक बात और सुन ले जाते जाते, कुछ लोग साथ बड़ा रहते हैं पर बात कम कम मानते। कहते हैं मैं झाड़ू जो देता हूँ आस्थाने, मुझे वजीफा पढ़ने की क्या जरूरत, मैं वहाँ हर वक्त हाजिर जो रहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है शजरा पढ़ने की, मुझे क्या ज़रूरत है उनकी बात सुनने की, मैं वहाँ रहता जो इतना ही काफ़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नौकरी भी खोल के की और नबी पाक की बात भी खोल के मानी। जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कर दिया। यहाँ तो लोग सोचते हैं ना, समझते हैं, गौर करते हैं, कहते हैं मैं वहीं होता हूँ, मेरे पर निस्बत है, वही काफ़ी है। मजमा लगा है सहाबा का, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी आज रोज़ा किसने रखा है? सब चुप कर गए। हुजूर ने दोबारा पूछा तो जनाब सिद्दीक अकबर बोले अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म न देते तो मैं ना बताता, ये अल्लाह ने आज मुझे तौफीक अता फरमाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज जनाजे में किसने शिरकत? लोग खामोश हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म न देते तो ना बताता, ये अल्लाह ने तौफीक मुझे अता फरमाया। आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म ना देते तो ना बताता, ये अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। फरमाया किसने आज लोगों को दीन की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, पैगाम दिया, कौन है? कि हुजूर अगर आप हुक्म न देते तो मैं न बताता, ये भी खिदमत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सुन, क़यामत के दिन एक दरवाजा जन्नत में ऐसा होगा जहाँ से सिर्फ रोजेदार गुजरे, एक ऐसा होगा जिससे सिर्फ नमाजी गुजरेंगे, एक ऐसा होगा जिससे सिर्फ हाजी गुजरेंगे, एक से सखावत करने वाले गुजरेंगे। लेकिन जब तू आएगा ना तो जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी कि इधर से दाखिल हो जा, इधर से हर दरवाजे से आवाज आएगी। इसलिए कि मजमूई तौर पर अमल किया जिंदगी में, मजमूई तौर पर